Namaskar everyone. How are you all? I hope you guys are fit and healthy at your place. So, today we are going to continue our chapter 8. What is the name of our chapter? Birds, right? So, before we continue, let's have quick revision of previous video. So, in previous video we learn about beaks, the main part of birds. A bird use its beak to catch and eat food. यानी beaks का यूज़ क्या है? beak का यूज़ क्या है? They use their beak to catch and eat food. फूड को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए और खाने के लिए they need beak. है ना? Different birds have different kinds of beaks depending upon the food they eat. यानी जो वो फूड खाते हैं उनके डिपेंडिंग उनकी जो बीक्स है वो क्या करी गई है? डिज़ाइन करी गई है ना? सो सी birds such as sparrow, pigeon eat nuts and seeds. So they have strong, short and hard beaks that helps them to crack and open their food, right? Now second thing, flesh eating bird यानी जो फ्लैश खाते हैं such as eagle, vulture and hawk feed on small birds and animals, so their beak कैसी होगी? They have strong, sharp and hooked beak for tearing flesh. फ्लैश को चीर फाड़ने के लिए उनके पास कैसी बीक होगी? Sharp, strong and hooked, right? Now third one is birds such as woodpecker have strong pointed beak. Why? Because by that beak they poke holes into hard tree trunks and pull out insects from holes. है ना? And hoopoe used its beak to look for food inside existing tree holes, right? Because they have to poke holes or they have to look for food inside holes, so they need a pointed beak जो एकदम strong हो. Okay. Now fourth one is water birds such as duck and goose have broad and flat beaks. Why? Because their food is insects and worms and plants inside water. तो उनको खाने के लिए उनको क्या करना पड़ता है? They have to take in water. ये सारी जो चीज़ें हैं insects, worms and plants, they have to take them with water. So their beaks are designed like broad and flat. Done. Now fifth one is birds such as the sunbird and hummingbird suck nectar from flowers. So they have long and pointed beaks which help to suck nectar. है ना? उन्हें फूलों का रस उनकी जो खाने की चीज़ है वो क्या है? फूलों का रस, नेक्टर. सो वो उनको लेने के लिए क्या चाहिए? पॉइंटेड एंड लॉन्ग बीक. सो दे हैव दैट टाइप ऑफ बीक. सो नाउ विल कंटिन्यू ऑन पेज नंबर 80. Our second topic is feet and claws. है ना? What is our second topic? Our second topic is feet and claws. है ना? तो before we start this topic, let's learn some hard words. So our first word is
hope around, HOPEROUND, hope around यानी जो कुछ मतलब जो झंप करके चलते हैं उसे हम होप अराउंड बोलेंगे, राइट। नाउ TALONS, talons. What is the meaning of talons? Talons ईगल के जो पंजे होते हैं उन्हें हम talons बोलेंगे, okay. They have sharp claws which called talons, right. फिर है perching birds, PERCHING perching birds यानी जो एकदम पंजे से अपनी जो डाली पे बैठे हैं वो पंजे से एकदम जकड़ के बैठते हैं, उन्हें हम पर्चिंग बर्ड्स बोलेंगे, लाइक स्पैरो, क्रो, राइट। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज स्क्रैचिंग बर्ड्स, SCRATCHING स्क्रैचिंग बर्ड्स यानी स्क्रैच करते हैं, वो डिग करते हैं, है ना। डिग करने के लिए उन्हें स्क्रैच करना पड़ता है, लाइक हैन, है ना, पीकॉक, दे स्क्रैच एंड डिग बुरो, है ना। क्लाइंबिंग बर्ड्स, CLIMBING क्लाइंबिंग बर्ड्स यानी ऊपर चढ़ने वाले बर्ड्स, ट्रीज़ के ऊपर चढ़ते हैं, है ना, फ्लाई करके नहीं, पर उनको खाने के लिए जैसे कि वुड पीकर है तो वो खाना खा रहा है तो उसे धीरे धीरे ऊपर चढ़ना होता है ना, सो उसे क्लाइंबिंग बर्ड्स बोलेंगे। फिर है वेब्ड फीट, WEBBED वेब्ड फीट यानी झालीदार पंजे। झालीदार यानी उसमें ये झालीदार पंजे किनके होते हैं? द वेब्ड फीट किनके होते हैं? ट्रंक के होते हैं, डक के होते हैं, स्ट्रॉक के होते हैं, बिकॉज दे हैव टू स्विम इन अ वाटर। नाउ अपीयरेंस, APPEARANCE अपीयरेंस यानी उनकी उपस्थिति। फिर है वेडिंग, WADING वेडिंग यानी पानी के थ्रू चलना, है ना, लॉन्ग लेग्स की हेल्प से पानी की थ्रू चलना। लास्ट वर्ड इज स्प्रेड आउट यानी फैलाना, SPREAD स्प्रेड आउट, OUT spread out. Now these are words you have to write down in your fair notebook with very good handwriting and with your pencil, right? Now we'll continue our chapter. So what is our next topic? Our next topic is feet and claws. तो feet यानी पैर, सबको पता है, एंड क्लास यानी पंजे। हमारे फीट है उसके नीचे जो होते हैं हम उसे पंजे बोलेंगे, है ना, इट्स ईजी फॉर अस। ऐसे ही बर्ड्स के भी फीट होते हैं, टोज होते हैं, क्लास होते हैं, है ना, बट दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट एंड क्लास बिकॉज जैसे उनकी बीक्स होती है ना, डिफरेंट टाइप की हमने देखी, अलग अलग टाइप की बीक्स देखी, बिकॉज दे हैव डिफरेंट फूड, तो दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक्स। वैसे ही ये जो फीट एंड क्लास है वो भी डिफरेंट ही होंगे, बिकॉज सबकी अलग अलग स्टाइल है, लाइफ स्टाइल है, राइट। सो सी, birds have 2 feet usually with 4 toes on each. बर्ड्स के पास कितने फीट होते हैं? 2 लेग्स होते हैं, फीट होते हैं, पैर होते हैं, विथ 4 टोज ऑन ईच यानी 4 जो है उंगलियां पंजे की
एक एक पैर में होती है, राइट। दे यूज़ देयर फीट टू वॉक एंड होप अराउंड। वो उनके फीट है वो कैसे यूज़ करते हैं, जंप करके दूसरी जगह जाने के लिए या फिर वॉक करने के लिए, आराम से वॉक भी करते हैं ना। एज वेल एज टू कैच एंड होल्ड फूड, यानी उन्हें फूड खाना है तो दे डोंट हैव हैंड्स, है ना, सो दे यूज़ देयर फीट टू कैच एंड होल्ड देयर फूड, और होल्ड करके वो अपनी बीक की मदद से खाते हैं, राइट। नाउ फ्लैश ईटिंग बर्ड्स such as eagle and vulture have very sharp claws called talons, है ना। यानी फ्लैश जो खाते हैं वैसे बर्ड, तो वो कौन कौन से हैं, ईगल, वल्चर, हॉक, ये इनके जो पैर होते हैं वो पैर और जो क्लास होते हैं, पंजे होते हैं, दे आर वेरी शार्प, और वो शार्प जो क्लास है उसे हम क्या बोलेंगे, टेलॉन्स, राइट। सी हियर इट इज़ ईगल्स टेलॉन्स, बहुत ही क्या होते हैं, शार्प होते हैं, पंजा मारते हैं तो छोटे जो पंछी होते हैं वो मर जाते हैं, है ना। दैट इज़ वाई दे हैव शार्प क्लोज, बिकॉज दे हैव टू ईट फूड लाइक फ्लैश, है ना, तो उसे वो टीयरिंग करके खाते हैं, चीर फाड़ के खाते हैं, तो दे नीड शार्प क्लॉज। यूजिंग दिस talons they pick up small animals such as toads, mice and rats, है ना। I told you guys that they are eating small birds, small animals, तो उन्हें उनके पंजे उनके जो talons है उससे वो ये सारे जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको वो ऐसे पंजे में जकड़ के खाते हैं। फिर है पर्चिंग बर्ड्स सच एज crow, sparrow, pigeon and parrot use their feet to hold on to tree branches and sit on them. This is called perching. Perching का मतलब है हम ब्रांच को होल्ड करके बैठते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्चिंग करना, है ना। तो पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं, दे आर क्रो, स्पैरो, पिजन एंड पैरट, दे आर पर्चिंग बर्ड्स। अ स्पैरो ग्रीप्स द ट्री ब्रांच विद इट्स फीट से देखो वो ऐसे जकड़ के बैठी है, वहाँ से गिरेगी नहीं, ज़्यादा बहुत ज़्यादा एयर है, पवन है, ठंडी है, तो भी वो वहाँ से हिल नहीं पाएगी, बिकॉज दे हैव ग्रीप, है ना, इन देयर क्लॉज। नाउ स्क्रैचिंग बर्ड्स सच एज hen and peacock have sharp claws to dig the ground. स्क्रैचिंग बर्ड्स है वो क्या करते हैं, ग्राउंड को ऐसे स्क्रैच करते रहते हैं, such as hen and peacock. Hen and peacock they are scratching birds, और वो क्या करते हैं, ग्राउंड को डीग करते हैं, खोदते रहते हैं with their sharp claws, उनके शार्प जो क्लास है उससे। A peacock also digs out food using its toes. यानी पीकॉक भी ऐसे ही डिग करके क्या करते हैं, उसमें से अपना फूड है वो निकालते हैं और खाते हैं। सी द hen uses its toes to scratch the mud to bring out small insects. यानी वो स्क्रैच क्यों करते रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड में से या मड में से क्या निकलते हैं, इंसेक्ट्स, तो वो खा सके, राइट। नाउ climbing birds such as woodpecker have two toes pointing in the upwards direction and two toes in the downward directions. See, upward में 2 होते हैं और डाउन में 2 होते हैं,
उसे हम क्लाइंबिंग बर्ड्स बोलेंगे. वाई दे हैव दिस टाइप ऑफ एंड दिस this design in their legs? Because this helps them to climb up and hold on the trees. अब देखो वो climb कर रहे हैं तो उनको hold भी करना पड़ेगा, है ना, trees पे. So they have this type of design of clothes class because they have to climbing and hold there and eat food. So climbing birds such as woodpecker have two toes, pointing toes in the upward direction. You can see upward direction 2 toes and downward 2 toes, है ना. आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आगे है 2 पीछे है उंगलियाँ. By them these birds to climb up and hold on the tree. अब woodpeckers hold on a tree. देखो वो hold करके बैठा है. बाकी कोई जो है वो ऐसे होल्ड करके नहीं बैठ पाएगा, वो 2 मिनट रहेगा वहाँ से उड़ जाएगा, बैठ नहीं पाएगा, है ना. तो क्लाइंबिंग बर्ड्स हैं, उनकी जो क्लास की डिज़ाइन होती है वो इस तरह से होती है, 2 upwards and 2 downward direction. Right? Now water birds. Water birds such as duck and goose have webbed feet that help them to swim in water. See, they have to swim in water, so उनकी जो पैरों की डिज़ाइन है, उनकी जो क्लास है वो कैसी होगी, वेब्ड होगी, यानी पूरी झालीदार. उनके जो पैर है वो झालीदार है, वेब्ड फीट है. The front toes of these birds are joined by skin. उनके जो फ्रंट टोज है वो स्किन के साथ जॉइन होंगे. क्यों? बिकॉज गिवन देम अ फ्लैट अपीयरेंस. क्योंकि वो फ्लैट, एकदम फ्लैट रहने में, उनको वहाँ उपस्थित रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए, है ना. दिस हेल्प्स देम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग. अगर वो स्विमिंग भी कर रहे हैं तो वो अपने वेब्ड जो फीट है उनसे ईजीली स्विम कर पाएंगे. ओके, सो आवर टुडेज टॉपिक इज फीट एंड क्लास. यू हैव टू रीड केयरफुली एंड यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. लाइकवाइज, सी, flesh eating birds such as eagle and vulture have very sharp claws called talons, right? और वो कैसे यूज़ करते हैं? They pick up small animals such as toads, mice and rats. इससे वो talons से क्या करते हैं? ऐसे अपने फूड को कैच करते हैं, पकड़ लेते हैं, राइट. फिर है पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं? इट्स a crow, sparrow, pigeon and parrot. and उससे क्या होता है? they use their feet to hold on trees, है ना. वो trees में होल्ड करके बैठने के लिए इस वर्ड का इस क्लास का यूज़ करते हैं, अपने फीट का यूज़ करते हैं. दिस इज़ कॉल्ड पर्चिंग, राइट. नाउ स्क्रैचिंग बर्ड्स. तो स्क्रैचिंग बर्ड कौन कौन से हैं? हैन एंड पीकॉक. तो दे हैव शार्प क्लोज बिकॉज दे हैव टू डिग द ग्राउंड एंड फाइंड आउट insects in the mud. Now next one is climbing birds such as woodpecker have 2 pointing toes in the upward direction and 2 starting point in downward direction, right? Water birds such as duck and goose have webbed feet that helps them to swim in water, right? वाटर में स्विम करने के लिए they use their webbed feet. The front toes of these birds are joined by skin.
उनकी जो फ्रंट टोज है वो स्किन से जॉइन होती है, गिविंग दैम अ फ्लैट अपीयरेंस। उन्हें पानी में स्थिर रहने में, उपस्थित रहने में, एकदम स्थिर रहना है तो वो हेल्प करेगा। दिस हेल्प्स दैम टू पुश वाटर वाइल स्विमिंग। और वो उसका यूज़ कैसे करते हैं? स्विमिंग करने में, पानी को धक्का देने में। सो नाउ पेज नंबर 81. Water birds such as the heron, stork and crane can walk through water. As you can see, ये बगुला है तो या फिर हिरन है या क्रेन है, दे कैन वॉक थ्रू वाटर। वाटर के थ्रू वो चलते हैं ना, वाटर के अंदर चलते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड वेडिंग। उन्हें क्या हम बोलेंगे? वेडिंग, WADING, वेडिंग, राइट। तो वेडिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग लेग्स विथ स्प्रेड आउट टोज दैट हेल्प्स देम वॉक इन द वाटर। देखो ये टोज है उनके, वो कैसे होंगे? एकदम स्प्रेड आउट होंगे, अलग अलग, जिससे क्या करेंगे? दे कैन वॉक इन द वाटर, वॉक थ्रू द वाटर, इससे पानी उसमें भरना जाए, राइट। नाउ नो योर साइंटिस्ट. Salim Ali is a very famous scientist who has studied about birds of India in details. अली सलीम करके एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बर्ड्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज़ की है। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। वो हमारे इंडिया के बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं। ओके, नाउ सी, लेट्स रिमाइंडर. फर्स्ट वन इज़ मैच द फॉलोइंग. यू हैव टू मैच कॉलम A to column B. फर्स्ट वन स्पैरो. तो स्पैरो का, अब यहाँ देखो फूड दिया है, तो स्पैरो का फूड क्या है? इट्स नट्स एंड ग्रेन, है ना, नट्स एंड ग्रेन्स. सो यू हैव टू मैच फर्स्ट टू C, राइट. सेकेंड वन इज हूपो. तो हूपो का जो खाना है वो क्या है? इंसेक्ट फ्रॉम होल्स. होल्स के अंदर जो इंसेक्ट्स होते हैं वो. ईगल क्या खाते हैं? स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल्स. सो मैच इट. फोर्थ वन इज डक. तो डक क्या खाते हैं? दे ईट इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम वाटर. वाटर से वो इंसेक्ट्स और वर्म्स को खाते हैं, राइट. फिफ्थ वन सनबर्ड. तो सनबर्ड क्या खाते हैं? दे ईट नेक्टर ऑफ फ्लावर्स. फ्लावर्स का रस पीते हैं. नाउ सी द सेकेंड एक्सरसाइज. गिव 2 एग्जाम्पल्स फॉर द फॉलोइंग. यू हैव टू गिव two एग्जाम्पल्स ईच. फर्स्ट है पर्चिंग बर्ड्स. पर्चिंग बर्ड्स. तो पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन से हैं? दे आर क्रो एंड स्पैरो. राइट डाउन विथ वेरी गुड हैंड राइटिंग. सेकेंड वन इज वेडिंग बर्ड्स. तो दे आर हिरन एंड स्टॉक, है ना. एंड थर्ड वन इज स्क्रैचिंग बर्ड्स. इट्स hen एंड peacock, right. So your homework is hard words and this let's reminder exercises 1 and 2. So we'll meet soon. Till then, take care, eat healthy and drink more water.